Gender and forms of education. Education, as you know, is a process of teaching and learning, delivering and receiving knowledge, transmission of knowledge in various disciplines as well as the cultural norms and values and practices. This is all what is involved in education. Education, when we talk about it, it generally refers to the learning that takes place in a formal setup. For example, in a school or a college or a university. But we see that education can be of other forms and other types also. Education can be formal education as we know it, informal education, and then non-formal education. Most of us are not familiar with non-formal education and informal education also. Formal education refers to education, teaching and learning which takes place at a specific place, at a specific time, according to a specific program, a specifically designed curriculum and a course. A set curriculum is followed. Teachers have to be trained in whatever they are teaching. Specified textbooks are used. Specific modules are made. The students receive some document, some sort of a degree or a certificate at the end of a course. So once they complete a course, they will get a testimonial, a paper, a document which shows that they completed this step in their education. So formal education has a hierarchical structure. जैसे कि हमने भी कहा कि एक स्टेप मुकम्मल करने के बाद या एक जमात मुकम्मल करने के बाद या एक ग्रेड मुकम्मल करने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़, एक रिज़ल्ट कार्ड मिलता है. अगर बड़ी जमातों में हों तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और इस तरह की डिग्रीज़ मिलती हैं जिससे पता लगता है कि आपने ये मरहला तालीम का तय कर लिया. और यूँ वक्त गुजरता है, हर मरहले के बाद एक नया मरहला, एक नई क्लास या एक नई डिग्री इंसान हासिल करता है और ये इसका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर की निशानदेही करता है. इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ डिफरेंट. It takes place in a flexible setting. It is not designed according to prefixed plan or carried out to meet the aims of a certain curriculum. ऐसा नहीं है कि हमने कोई ख़ास टारगेट्स बनाए हैं जिनको हमने मीट करना है, हमने एक कोर्स आउटलाइन बनाई है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा नहीं है. ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. The time and place is also not fixed. It can take place anytime, anywhere. For example, teaching children basic counting or nursery rhymes or alphabets at home by mothers or siblings or other relatives or grandparents. This is a good example of informal teaching and learning. Girls learn household chores, household skills from the family members, the relatives, mothers, sisters, and while some other girls learn these skills from at a formal setting. यानी हम देखते हैं कि घरेलू अमूर और अमूर ख़ानदारी जो है, हम अगर इनफॉर्मल तरीके से देखें तो बहुत सी बच्चियां अपनी माओं से और अपनी बहनों से सीखती हैं या ख़ुद अपने तजर्बे से ट्रायल एंड एरर से भी सीख लेती हैं. दूसरी जानिब बहुत सी लड़कियां यही स्किल्स किसी फॉर्मल इदारे में जाकर होम इकोनॉमिक्स पढ़कर सीखती हैं. Non-formal education, it is meant for some special target groups and it is designed for the needs of people in that group. For example, adult literacy programs. Formal education के मुकाबले में अगर हम देखें non-formal education तो इनमें कुछ चीज़ें हमें मिलती जुलती भी दिखाई देती हैं, लेकिन non-formal जो एक ख़ास तरह के लोगों के लिए, ख़ास ग्रुप के लिए आम तौर पर इसको डिज़ाइन किया जाता है. Non-formal education is in some ways similar to formal education because it has been planned and organized to meet the needs of the persons to be educated. तो चुनांचे जब इसको सोचा जाता है, प्लान किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है तो कुछ लर्निंग आउटकम जहन में होते हैं कि हाँ, हमने इन लोगों के साथ काम करना है, ये काम करना है और हम ये मकासद हैं जो हासिल करना चाहते हैं तालीम के हवाले से. Education for all is one of the sustainable development goals to be achieved by 2030, as you know. This shows that there is a global concern that not everyone, especially children included, is receiving formal education. यानी दुनिया में उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उन बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनको फॉर्मल तालीम
नहीं मिल रही। और फॉर्मल तालीम मिलना इसलिए ज़रूरी है, रस्मी तालीम, कि क्योंकि उसको हासिल करने के बाद ही बच्चे आगे के मराहिल तालीम में हासिल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा फॉर्मल स्कूल में तालीम याफ्ता नहीं है तो उसको अगले बड़ी क्लासों में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सकता। Although all children suffer from this problem, but girls are affected more as compared to boys. One major reason could be the cultural practices, because of which many parents prefer their daughters to stay home. बहुत से वालिदैन समझते हैं कि लड़कियों के लिए तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर वो अमूर ख़ानादारी सीख लें, घर को संभालना सीख लें तो ये उनके लिए काफ़ी है। अर्ली मैरिजेस भी इसकी एक वजह है। कम उम्री की शादी होने की वजह से बच्चों को तालीम छोड़नी पड़ जाती है। और फिर अर्ली मदरहुड, छोटी ही उम्र में माँ बन जाना और फिर बच्चों की और घरदारी की जिम्मेदारी संभालना जो है, उसमें बच्चियों को या लड़कियों को वक्त नहीं मिलता अपनी पढ़ाई के लिए। ऑल्सो अनदर रीज़न कुड बी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर नॉट एक्सेसिबल। तो बहुत सी सूरतों में तालीम तक रसाई मुश्किल हो जाती है। जिस इलाके में, ख़ास तौर पे हम देहाती इलाके में देखते हैं कि वहाँ पे स्कूल इतने एक्सेसिबल नहीं हैं, घर से इतने नज़दीक नहीं हैं कि लड़कियाँ जो हैं स्कूल तक जाएं और तालीम हासिल कर सकें। At the same time, in the urban areas in developed and developing countries, the number of boys and girls going to school has been improving. In higher education, girls are making significant achievements. The number of girls in higher educational institutions is on the increase. और हमने देखा कि पाकिस्तान में भी ऐसा है, लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में आला तालीम के लिए भी जा रही हैं और मुख्तलिफ डाइवर्स फील्ड्स में भी जा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहाँ पे लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर रही, और शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें ख़वातीन मौजूद ना हो। द नंबर ऑफ़ यंग विमेन entering professional educational institutions is increasing. For example, medical colleges. किसी ज़माने में मेडिकल कॉलेजेस में ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कोटा हुआ करता था, फिक्स सीटें, कि वो उस पर अप्लाई करेंगे और उस पर मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी जितना कि लड़के कर रहे थे। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो लड़कियों की शायद अक्सरियत है जिसको मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलता है, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा achievement दिखा रही हैं। In non-formal education, we see that mostly NGOs take up the responsibility of adult literacy. Non-formal education की बेहतरीन मिसाल तालीम बालिगा या adult literacy है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि रस्मी तालीम के मुकाबले में इस शोबे में NGOs जो हैं, जो गैर सरकारी जो इदारे हैं, वो ज़्यादा अपना किरदार अदा करते रहे हैं और कर रहे हैं। ख़वातीन जो तालीम नहीं हासिल कर पाएँ किसी वजह से अपनी कम उम्र में या नौजवानी में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपनी उस कमी को पूरा कर सकें और कम से कम अपनी बुनियादी जो लिटरेसी है या बुनियादी तालीम है वो हासिल कर पाएँ। सो हम देखते हैं कि तालीम चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो, वहाँ पे भी हमें थोड़े बहुत जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।